السلام علیکم ناظرین، اس بیان کو مکمل سنیں اور ہندوستان کے سنویدھان کو جانیں اور سمجھیں، اور 26 جنوری میں اس کو پورا بیان کریں اور سننے کے بعد چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ محترم حضرات، چونکہ 2 دن کے بعد میرا سفر ہے تو اب 2 ہی دن بچے ہیں، آج اور کل۔ تو جو پہلے سلسلہ شروع کیا گیا تھا اسلام پر اعتراضات اور اس کے جوابات، وہ ہم سے جو توفیق ہوئی، اللہ نے جو توفیق دی، وہ ہم نے آپ کے سامنے بیان کی۔ ہم چاہ رہے ہیں کہ 2 دن میں، چونکہ 26 جنوری آنے والی ہے، تو ہندوستان کے آئین پر بات کی جائے۔ بھارت کے آئین کی تاریخ کیا ہے، اور 26 جنوری کو جو ہم پورے بھارت واسی خوشیاں مناتے ہیں، اس کی بنیادی وجہ کیا ہے۔ لوگ اس بات میں بڑا کنفیوز ہوتے ہیں کہ 15 اگست اور 26 جنوری دونوں کو کہتے ہیں کہ آزادی کا دن ہے، حالانکہ 15 اگست الگ چیز ہے، 26 جنوری الگ چیز ہے۔ تو انشاءاللہ ہم تفصیل سے بات کریں گے 2 حصوں میں۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح بات کہنے کی اور پورے بھارت واسیوں کو صحیح بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیں، قانون جو ہے دنیا میں 3 لوگ بناتے ہیں۔ کون لوگ بناتے ہیں؟ کتنے لوگ بناتے ہیں؟ ایک قانون کچھ لوگ مل کر بناتے ہیں، جس کو پارلیمنٹ کہتے ہیں۔ ایک قانون کبھی ایک شخص بناتا ہے، جس کو بادشاہی نظام کہتے ہیں، اور ایک قانون قانون الہی ہوتا ہے۔ پوری دنیا انہی 3 طریقے کے قانون میں کیا ہے، اپنے آپ کو جکڑے ہوئے ہے۔ جو قانون ایک فرد بناتا ہے تو اس میں سب سے زیادہ غلطی ہونے کے چانسز ہوتے ہیں۔ جب چند لوگ مل کر کے بناتے ہیں، جس کو پارلیمنٹ آپ کہتے ہیں، تو بھی اس پہ غلطی ہونے کے 100% چانسز ہوتے ہیں۔ دونوں، جب ایک آدمی یا پارلیمنٹ قانون بناتی ہے تو غلطی ہونے کے چانسز چونکہ ہوتے ہیں، لہذا اللہ تعالیٰ کی جو سنت ہے، جو اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہے، آدم علیہ السلام سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک، وہ یہ ہے کہ قانون سازی میں وہ کسی شخص کو شریک ہونے کا مشورہ نہیں دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے قانون ہم بنائیں گے، آپ اس قانون کو اپنے اوپر اور اپنے ملک کے اوپر آپ اس کو نافذ کریں گے، لیکن آپ قانون بنائیں گے نہیں۔ وجہ کیا ہے؟ ہم کو جب اللہ نے عقل دی ہے تو اس عقل سے جیسے ہم بہت سے کام کرتے ہیں، ہم قانون بھی بنا سکتے ہیں، لیکن دیکھا یہ جاتا ہے کہ قانون جب بنانے بیٹھتا ہے بندہ، تو یا پارلیمنٹ بنانے بیٹھتی ہے، تو اس کے سامنے سب سے پہلا مسئلہ ہوتا ہے کہ کبھی کبھی انتقامی جذبے کی وجہ سے قانون بناتا ہے، لہذا نتیجہ نکلتا ہے کہ بیلنس کھو دیتا ہے۔ ایک چیز۔ دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ جب قانون بنانے بیٹھتا ہے تو وہ بندہ چونکہ محدود اس کی نگاہیں کام کرتی ہیں، تو ایک محدود ٹائم تک وہ دیکھ پاتا ہے، اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اس کے بعد وہ قانون اپنے آپ کیا ہوتا ہے، فیل ہو جاتا ہے۔ نمبر 3، جس چیز کو وہ ایک زمانے تک غلط سمجھتا تھا، پھر اچانک اس کے دماغ میں بات آنے لگتی ہے کہ نہیں، وہ جو غلط تھا وہ صحیح ہے، جس کو ہم نے غلط کہا وہ صحیح ہے، جو صحیح ہے وہ غلط ہے۔ یہ تینوں طریقے کے فالٹ ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر دے دیں تاکہ آپ کو بات سمجھ میں آ جائے۔ بھارت کا جو قانون، ہم اس کے بارے میں پوری بات کریں گے۔ ابھی 2019 جنوری تک تقریباً بھارت کا جو سنویدھان ہے 1950 سے جو لاگو ہوا ہے، اس میں تقریباً 117 مرتبہ ترمیمات ہو چکی ہیں۔ جن لوگوں نے بنایا تھا ان کے وہم و گمان میں نہیں تھا کہ ہمارے قانون پہ کوئی انگلی رکھ سکتا ہے، اور اس میں 117 مرتبہ انگلی رکھی جا چکی۔ ابھی آنے والے دن میں کتنی مرتبہ اس کو چینج کیا جائے گا، اس کا کسی کو اندازہ نہیں ہے۔ جن چیزوں کو انہوں نے سچ کہا تھا
ان کو آج کے संविधान में जजों ने, पार्लियामेंट में सांसदों ने बैठ करके कह दिया नहीं, उन्होंने जो बात कही थी वो गलत है। मिसाल के तौर पर जब दिल्ली का रेप का केस हुआ तो उसमें लड़की के साथ देना बिल जबर करने के बाद उसको गाड़ी से फेंक दिया गया। बहुत मशहूर केस हुआ, फिर वो सिंगापुर गई, उसका इंतकाल हो गया। उसमें जिस शख्स ने उस लड़की के साथ सबसे ज्यादा ज्यादती की थी वो सरकार की निगाह में, कानून की निगाह में नाबालिग था। क्यों? क्योंकि नाबालिग की उम्र उन्होंने मुतय्यन जो की थी वो 18 साल की थी, लिहाजा 18 साल का बच्चा उनके नजदीक उससे नीचे वाला नाबालिग होगा। नतीजा क्या निकला कि जब ये हादसा पेश आया तो फिर सर जोड़ के बैठे कि नहीं साहब, ये नाबालिग की उम्र हमने गलत मुतय्यन की है, इसको कम करना चाहिए। अब उन्होंने उठा करके 16 साल कर दिया। तो पता चला जिस चीज को एक जमाने तक वो गलत के सही कहते रहे हैं, अपने ही लोग फिर उसको क्या करेंगे, गलत कर। कुरान मजीद ने या इस्लाम ने नाबालिग की उम्र नहीं बताई कि उम्र क्या है। उसने क्या कहा कि लड़की को जब माहवारी शुरू हो जाए वो बालिग है, क्योंकि हर इलाके के लिहाज से लड़कियां बालिग होने के हालात अलग अलग होंगे। कभी मौसम पर मामला होगा, कभी ग़िज़ा पर मामला होगा, कभी उसके मिजाज पर मामला होगा। उसने उम्र को नहीं कहा, लिहाजा उसका कानून कभी नहीं बदलेगा। क्यों? वो पीरियड जो आता है उस औरत को, वो भी हमारे रब की कारीगरी है, सबसे ज्यादा वो जानता है, तुम्हें क्या मालूम। यकीनी बात है कि रब ने हमको बनाया है, लिहाजा सबसे ज्यादा हमारे बारे में वो जानता है। उसने मर्दों के बारे में कई एक अलामतें बयान कर दी शरीयत ने। इस्लाम हो गया, इसका मर्द बालिग हो गया, उम्र से कोई कैद नहीं है, उम्र से कोई कैद नहीं है। तो बताना ये चाहता हूं कि जब पार्लियामेंट कानून बनाएगी, फर्द कानून बनाएगा, लाजिम तौर पर उसको अपने बनाए हुए कानून पर कलम फिर दोबारा चलाना पड़ेगा। परवरदिगार आलम जो कानून बनाता है, जिसको तकदीर के नाम से भी कहा जाए, जैसे भी कहा, वहां जफ्फल कलम, कलम सूख गया है, उसमें कोई तरमीम कभी नहीं होती है। तो ये इंसानी कानून में और अल्लाह के कानून में बुनियादी फर्क होता है। कल तक जिन जजों ने 2018 के नवंबर तक जिन जजों ने भारत के 1947 से जिन संविधान में, जिन पार्लियामेंट के मेंबर्स ने कह रखा था कि हम जिन्स परस्ती गलत है, उसको 2018 के संविधान में कहा गया कि अब तक इन्होंने गलती की, ये सही है कि हम जिन्स परस्ती गुनाह नहीं है। अब आने वाले दिन में फिर कभी गुनाह हो जाए वो भी मुमकिन है। ये सारी चीजें इंसानी कानून में होती हैं, लिहाजा कानून वही कानून है जो हमारे रब का कानून है। बात समझे यहां तक? नंबर 1 ये तमहीदी बात थी। नंबर 2, ये जो भारत का आईन है, हम भारत जब बोलते हैं तो ये बहुत जमाने से है। हम थोड़ा से लंबे से चलते हैं कि ये कैसे कैसे कानून पर आया, कैसे कैसे 26 जनवरी तक पहुंचाए। फिर 26 जनवरी में क्या हुआ वो बाद में बात करेंगे। ये हिंदुस्तान में जब मुसलमानों ने इस मुल्क पर कब्जा किया, इब्राहिम लोदी से पहले भी, तो इसके कानून को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया गया। पहला ये हिस्सा किया गया कि ज्यादातर कानून पुरानी कानून थे क्योंकि वो मुसलमान थे। दूसरा उन्होंने क्या किया, क्योंकि बहुजात, बहुत सी जातों वाला ये देश था, लिहाजा उन्होंने उनके मजहब के लिहाज से पर्सनल लॉ को उनके ऊपर छोड़ दिया कि शादी ब्याह आप जो करना चाहते हैं अपने तौर पे करें, जैसे आपका रस्म व रवाज है, हम इसमें कोई इंटरफेयर नहीं करेंगे। चलता रहा, बाबर तक चलता रहा। बाबर जब आया तो बाबर ने इसे बड़ा मॉडिफाई किया, यानी और ज्यादा उसको इस्लामिक बनाया बाबर ने। फिर जब औरंगजेब का बनाया तो और ज्यादा इस्लामिक बनाया गया। कहना यह चाहता हूं कि तकरीबन 700-800 साल तक भारत जो है वो इस्लामी कानून मोतद भी हिस्सा, ज्यादातर हिस्सा जो है वो इस्लामी कानून के तहत ही भारत का चलता रहा।
जब 1857 में अंग्रेजों ने भारत पर कब्जा किया तो उनके सामने ये मसला आया कि अब हमने इसको गुलाम बनाया, देश को, लिहाजा गुलाम बनाने के लिए जो कानून चाहिए, शुरू से चलता हुए कानून को उन्होंने क्या किया, सबसे पहले 1862 में चेंज किया ताकि हम इस देशवासियों को गुलाम बना सकें। 1862 में उन्होंने, चूंकि दो हिस्से होते थे कानून के, एक क्रिमिनल लॉ कहलाता था, एक सिविल लॉ कहलाता था, तो सबसे पहले इन्होंने 1862 में जब कब्जा किया 1857 में, तो 57 और 3 60 और 2 62, 5 साल के बाद उन्होंने भारत के क्रिमिनल कानून को तब्दील कर दिया और तब्दील करने के बाद उन्होंने इंडियन पेनल लॉ के नाम से कानून बना दिया ताकि हम इस देश को गुलाम बना सके। यहां पर ब्रैकेट की एक बात बताते हुए चले कि अफसोस की बात यह है कि 1862 में अंग्रेजों ने जो क्रिमिनल कानून बनाया, भारत आजाद होने के बावजूद भी उस कानून को 1% भी टच नहीं किया गया। बहुत मामूली सी तब्दीली लाई गई। क्यों? क्योंकि आज भी आप हकीकत में गुलाम हैं, भले आप कह रहे हो, लेकिन कानूनी लिहाज से, क्योंकि वो कानून बदला ही। अभी हम आपको बताएंगे आगे इंशाल्लाह कि टोटल कानून में कितने % अंग्रेजों का कानून आज भी आपके संविधान में मौजूद है, वो बाद में बात करेंगे। तो 1862 में सबसे पहले अंग्रेजों ने उसमें क्या किया, तरमीम किया, जो बाबर के जमाने से चला आ रहा था। उसके बाद 1862 से चलते चलते 1915 तक अब अंग्रेजों को यह महसूस होने लगा कि देश को छोड़ना पड़ेगा। दो शक्लें उनको समझ में आई 1915-14 में कि देश को छोड़ना पड़ेगा, और या ये कि इन देशवासियों की मांगों को पूरा करना पड़ेगा। दो में से कोई एक काम करना पड़ेगा। तो पहली ट्राई मारी इन्होंने कि भारतवासियों को जिन चीजों की जरूरत है कि हमारे खिलाफ ये कानून है, उसको हम गौर करेंगे। तो 1917 और 19 में यहां के लीडरों ने उस संविधान को जो चला आ रहा था, उसमें उन्होंने कहा कि हमको चंद चीजों से आपत्ति है, हमें चंद चीजें से एतराज है, आप इसको चेंज करें। तो अब गुलामी की जड़ें क्या हो गई थी, ढीली हो गई थी, लिहाजा उन्होंने हमारे लीडरों की बात सुनी। तो उन्होंने जिन चीजों का मुतालबा किया 1917 में, वो ये था कि हमको हक से मुसावात होना चाहिए, यानी जैसे आपको हक है हमको भी हक होना चाहिए। मतलब देश हमारा है, तुम हमसे सुपर बन करके अपने लिए ज्यादा राइट्स रखते हो और हमारे लिए हुकूक कम रखते हो। मिसाल के तौर पर एक छोटी सी मिसाल देता हूं। चार घोड़े की गाड़ी जो चलती थी, जो विक्टोरिया के नाम से मशहूर है, अभी भी बॉम्बे वगैरह में है, उस पे कोई भी हिंदुस्तानी सफर नहीं कर सकता था, सिर्फ अंग्रेज बैठ करके उस पे सफर कर सकता था। मुकदमा भी हुआ था मद्रास में तो एक हिंदुस्तानी बैठ गया तो अंग्रेज ने उसको चैलेंज कर दिया क्योंकि तुमने कानून तोड़ा, ये सिर्फ और सिर्फ गोरों का हक है। तो मुकदमे में उसने जब बात चली तो मुकदमा अंग्रेज हार गया। उसमें क्या बात आई टेक्निकली, उन्होंने कहा साहब आपके कानून में लिखा है कि 4 घोड़े वाली गाड़ी से कोई भी काला नहीं सफर कर सकता। उसमें 3 घोड़ा था और 1 घोड़ी थी। टेक्निकल पॉइंट फंसा करके बहरहाल वो एक आपको लतीफे के तरह, ये वाकया हुआ कि उसमें घोड़े में 3 घोड़ा था और 1 घोड़ी थी। तो उसने कहा कि हम उस कानून के जद में नहीं आते हैं। अब कौन साबित करना कि जिस वक्त तुम चढ़े तो घोड़ी थी कि घोड़ा था। बहरहाल तो सबसे पहले इन्होंने 1917 में हमारे कांग्रेस के खासकर लीडरों में, इसमें अबुल कलाम आजाद भी आगे थे, कि हक मुसावात की बात कही कि ये हमको कानून में होना चाहिए बराबरी का हक। आजादी इजहार हमको हम जो गुलामी हमको बहे, ये गुलामी खत्म हो और हमको अपनी बात कहने का हक दिया जाए। तीसरी बात उन्होंने कहा था कि जो मुकदमा हमारे खिलाफ चले अदालत में, उसमें कम से कम 50% हिंदुस्तानी जज मौजूद हो। ये उन्होंने तीसरा मुतालबा रखा। और इसी तरीके से उन्होंने ये कहा
कि बरतानवी शहरी की तरह हमको भी वेपन हथियार रखने की इजाजत होनी चाहिए। ऐसे उन्होंने 10-12 पॉइंट लिख करके दिए। उस पर अंग्रेजों ने गौर किया और जहां तक हो सका उन्होंने, सब तो नहीं, कुछ उन्होंने आगे पीछे करके मामले को मतलब उनका मुंह बंद कराया। फिर 1925 में फिर एक मरतबा जो है वो महसूस किया गया कि हमारा जो आईन है जो चल रहा है, अभी आजादी तो ही नहीं है, 1925 चल रहा है, तो फिर उस वक्त जो है वो उन्होंने लोगों ने रखा, लीडरों ने, कि ये तरमीम फिर चाहिए। कुछ तो पुरानी वाली थी जो रिपीट की गई, जैसे 1947 से जमीयतुल उलमा हिंद भारत को करारदाद पेश कर रही है। कब से? जब से देश आजाद हुआ है, कि इस देश में 33% फोर्स में, पुलिस में, तमाम डिपार्टमेंट में मुसलमानों को रिजर्वेशन दिया जाए। करारदाद पे करारदाद हम हर मर्तबा पेश करते हैं, वो ऐसे ही करारदाद आती है चली जाती है, वो गवर्नमेंट उसके ऊपर तवज्जो नहीं दे रही। तो इन लोगों ने कुछ को तवज्जो दिया, कुछ को नहीं। जब दूसरी मर्तबा बात आई तो उसमें जो है वो आजादी दी जाए इज्तिमा करने की। अंग्रेजों के जमाने में मुसलमानों को नहीं, भारतवासियों को एक जगह इकट्ठा होकर के तकरीर करने की आजादी नहीं देते थे। घर में भी अगर करते थे तो भी कानून के खिलाफ माना जाता था। तो उन्होंने एक बात ये कही। दूसरी ये कि अवामी मुकामात, पब्लिक प्लेस पर हमको प्रोग्राम करने की इजाजत दी जाए, ये बात भी उन्होंने सामने रखी। औरत और मर्द के दरमियान में जो कानून में फर्क रखा गया है, उस फर्क को क्या किया जाए, खत्म किया जाए। ऐसे करके इन्होंने तकरीबन 10-12 नुकात फिर रखे 1925 में। 1927 में मोतीलाल नेहरू ने फिर कानून पर बात की और आईन स्वराज के नाम पर पूरा एक मुसव्वदा तैयार करके दिया कि हम चाहते हैं कि आपका ये जो कानून है इसमें ये तब्दीली आनी चाहिए। उन्होंने लंबी चौड़ी उसमें जो है ना गिनाई बातें। बहरहाल फिर कुछ बातों को माना गया, फिर कुछ को पेंडिंग में डाला गया। 1927 में आज पाकिस्तान में वो शहर है, नेहरू ने मीटिंग की कांग्रेस की और उसमें उन्होंने सबसे पहले, ये जो आप एक्स्ट्रा सिविल कोड का सुनते हैं, एक्स्ट्रा सिविल कोड का मतलब ये होता है कि देश एक होगा और सारे देशवासी एक कानून के तहत जिंदगी गुजारेंगे। अब इसमें यकीनी बात है कि हर आदमी का अपना अपना कानून है, अपने धर्म का, कैसे इकट्ठा हो सकते। ये सबसे पहले आइडिया नेहरू जी ने दिया 1927 में। ये जब उस मीटिंग में ये पास किया गया कि हिंदुस्तान में सिविल एक्स्ट्रा सिविल कोड आना चाहिए, तो अंग्रेजों ने जो है ना इसको रद्द कर दिया। उन्होंने कहा कि ये नहीं चल पाएगी बात। 1931 में कराची में फिर कांग्रेस ने मीटिंग की और करने के बाद उन्होंने फिर मुतालबा किया। मुतालबा करने के बाद उन्होंने जैसे चंद बातों का कि जमीन जो भारत की है उसकी इस्लाह और उसकी जो है ना उसका बंदोबस्त होना चाहिए कि मालिक कौन बनेगा, कितने तक का मालिक हो सकता है, ये उन जमीन के बारे में उन्होंने खास फोकस डाला। फिर उसके बाद उन्होंने सियासी कैदियों को सजाए मौत इससे ये नहीं होनी चाहिए, ये उन्होंने जो है वो तरमीम के लिए बात डाली। इसी तरीके से उन्होंने जो है वो एक जगह से दूसरी जगह जाने में बाद लीडरों को परमिशन लेनी पड़ती थी। यानी एक सिटी से दूसरी सिटी भी जाना है, भारत में ही जाना है, तो भी आपको क्या करना है, आज भी सऊदी में है कि अगर एक सिटी से आप दूसरी सिटी जाते हैं तो जब तक आपका कफील लिख कर नहीं देता आप नहीं जा सकते, आपको बॉर्डर पे रोक करके वापस कर देगा। ये अंग्रेजों ने यहां भी बना रखा था कि आप जा नहीं सकते हैं, पुलिस वालों से परमिशन लीजिए, फिर आगे पुलिस वालों को इत्तला की जाएगी, फिर वो जब कहेगा तब जाकर के आपको जाने की इजाजत होगी। इस तरीके से कानून 1931 में फिर तरमीम की बात आई। 1931 के बाद 1937 में जो है वो अंग्रेजों ने एक बड़ी तरमीम किया। 1862 में उन्होंने क्या किया था कि क्रिमिनल लॉ तब्दील किया था, 1937 में सिविल लॉ तब्दील कर दिया। जो भी चला आ रहा था बाबर के जमाने से
क्योंकि उसमें ज्यादातर बातें क्या थी, इस्लामी लिहाज से थी। लिहाजा 1937 में उन्होंने सब कुछ तकरीबन चेंज कर दिया। जब चेंज किया तो प्रॉब्लम आई मुस्लिम पर्सनल लॉ ही नहीं, सारे पर्सनल लॉ की, यानी हर मजहब के मानने वाले अपने मजहबी उमूर को क्या अब इस कानून के तहत करेंगे या उनको अपना अख्तियार है। तो ये पहली मर्तबा उन्होंने पर्सनल लॉ का इंट्रोडक्शन करवाया। किसने? अंग्रेजों ने, कि जितनी भी मिनॉरिटीज हैं उनका अपना अपना जो लॉ है, या मिनॉरिटीज हैं या नहीं है, अगर उनका अपना धर्म किसी कानून के बारे में बात करता है तो उनको अख्तियार है कि वो अपने अपने धर्म पर अमल कर सकते हैं। तो 1937 में यह हुआ। 1937 से लेकर 1947 तक इसी तरीके से चलता रहा। तो हकीकत में ये 1937 पहले उधर बदला था 1862 पे, फिर 1937 में। 1937 में इन्होंने डिक्लेयर किया था, लेकिन हकीकत में 1935 में ही उनका इरादा हो चुका था। तो जब 1947 आया और बरतानिया ने यह तय किया कि हिंदुस्तान को छोड़ना है, अभी तक न पाकिस्तान का नाम था और न भारत का नाम हिंदुस्तान था, न भारत ही भारत था। तो इन लोगों ने छोड़ने की जब बात की तो इन्होंने कहा कि आप देश को हम जब छोड़ेंगे तो किस कानून के तहत आप चलाएंगे। तो अब इन लोगों के पास कोई तैयार जो है ना वो मटेरियल मौजूद ही नहीं था, न उनके पास न इनके पास। तो इन लोगों ने कहा हम देश तो छोड़ देते हैं, लेकिन 1935 का जो हमारा संविधान है उसी के तहत देश चलेगा 1947 से। कब तक? जब तक कि आप अपना संविधान बना नहीं लेंगे तब तक। तो अंग्रेज चले गए। 1947 में देश आजाद हो गया, 2 टुकड़े में बांट दिया उन्होंने, और बांटने के बाद दोनों से कह दिया कि आप लोग अपना अपना संविधान बना लें। अब भारत वाले जुटे संविधान बनाने में, उधर पाकिस्तान वाले अपने तौर पर जुटे। खैर उससे हमसे मतलब नहीं, अब हम अपनी बात करते हैं। 1947 से अब जब बनाने की बात आई तो 1949 तक जो है वो संविधान बनता रहा, 2 साल तक। इसकी जो कमेटी थी वो 7 आदमियों पर मुनहसिर थी। 7 आदमी में एक आदमी मुसलमान भी थे, मोहम्मद असदुल्ला साहब, और इसके जो 7 के जो इंचार्ज थे वो बाबा अंबेडकर साहब थे, वो उसके चेयरमैन थे 7 के। इन लोगों ने 1947 से 1949 तक भारत के उस संविधान को बनाया जो आज आपके सामने मौजूद है। जब 1949 नवंबर में कानून को सौंपा गया हुकूमत को कि ये हम लोगों ने बनाया है, अब देश को इसके तहत चलना चाहिए, तो नवंबर 49 से लेकर के जनवरी 26 तक ये उस पूरे कानून पर पार्लियामेंट में बहस होती रही कि इसको कैसे चलाया जाए, क्या किया जाए। बहरहाल उन लोगों के उस कानून पर पार्लियामेंट में बहसें हो करके 26 जनवरी 1950 को पार्लियामेंट ने कह दिया कि अब आज से भारत का संविधान ये होगा। लिहाजा आप जो 26 जनवरी 1950 मनाते हैं वो इसलिए से क्योंकि इस दिन आपको कानून मिला और अब देश अपने कानून और अपने संविधान के तहत क्या कर रहा है, जिंदगी गुजारने की कोशिश कर रहा है। अब ये जो संविधान दे करके आईन दिया गया, इसलिए आप देखें कहीं भी लफ्ज हिंदुस्तान इस संविधान में इस्तेमाल नहीं हुआ है। ये बात आपको खासकर बताना चाहता हूं। और आप भी, हम भी बोलते हैं झटके में, हिंदुस्तान कहना अच्छी चीज नहीं है। हिंदुस्तान कहना अच्छी चीज नहीं है क्योंकि संविधान वालों ने इसको हिंदुस्तान कहने से सख्त इनकार किया। इसीलिए उर्दू में इसका जो नाम है संविधान का, भारत का आईन, हिंदी में है भारत का संविधान, इंग्लिश में है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, लेकिन हिंदुस्तान का लफ्ज कहीं नहीं आया है। क्यों? हिंदुस्तान का जब लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है तो हिंदू लफ्ज से लगता है हिंदुओं का मुल्क। ये हम लोगों को मालूम नहीं है, हम गैर जिम्मेदारी तौर पर, या ये कि हमको मालूमात नहीं है, हम भी ये लफ्ज हिंदुस्तान बोलते रहते हैं, बल्कि उर्दू वाले समझते हैं कि ये उर्दू कोई लफ्ज है, बहुत अच्छा लफ्ज है। हालांकि ये अच्छा लफ्ज नहीं है। अच्छा लफ्ज इसका क्या है? भारत ही है। तो 1950 में ये 26 जनवरी 1950 को ये पूरा का पूरा संविधान
पार्लियामेंट में पास हो गया, रखा गया था पहले, लेकिन पास हुआ 26 को और उस दिन से इसको नाफिजुल अमल कर दिया गया। ये 26 जनवरी की जो खुशी बनाई जाती है कि अब हम दूसरों के कानून से छुटकारा पा करके हम अपने लोगों के बनाए हुए संविधान के तहत जिंदगी गुजारेंगे। ये आज की तकरीर का पहला पॉइंट था। अब ये जो आपने ये जो खुशी मनाई कि ये कानून हमारे लोगों ने बनाया है, हम आपको बताएंगे इस कानून में कहां कहां फॉल्ट हुआ और कहां कहां लोगों ने फॉल्ट किया। एक होता है फॉल्ट का होना, एक होता है फॉल्ट का करना। हम करना भी बताएंगे और होना भी बताएंगे, दोनों बताएंगे। तो इस तरीके से इंशाअल्लाह अब हम कल जो बात करेंगे, एग्जैक्ट आपके सामने बात करेंगे कि ये पूरा संविधान में कितने चैप्टर्स हैं, कितने हुरूफ हैं, कितनी धाराएं हैं, आर्टिकल किसे कहते हैं, धाराएं किसे कहते हैं, अनुच्छेद किसे कहते हैं, ये सारी बातें नफ्से नफीस कानून पर की जाएगी। लिहाजा ये खुशी मनाने का तो दिन है, लेकिन हकीकत क्या है कि खुशी उस वक्त हो जब सही माने में हमारा संविधान सही हो जाए। वैसे जब आप कंपेयर करेंगे दूसरों के मुकाबले में, तो हिंदुस्तान का संविधान दूसरों के मुकाबले में बहुत अच्छा है। क्योंकि आदमी जो है ना, जब एक आदमी को अच्छी चीज मालूम ही नहीं है, तो उसको जो मालूम है वो उससे कंपेयर करेगा, मुआवजा करेगा, कहेगा बहुत अच्छा है। जब उसके सामने उससे अच्छी चीज रखी जाए, तब पता चलेगा कि हमारे संविधान में कहां पे फॉल्ट हुआ है। तो इस तरीके से उस लिहाज से हम इसीलिए कहते हैं, और हमको इसका एहतराम करना भी चाहिए, क्योंकि हमने उसके ऊपर दस्तखत की है, हम उस पर राजी होते हैं। हम जब इस देश में पैदा होते हैं तो कानूनी लिहाज से क्या है, अहद करें या न करें, लेकिन हम ये बात कहते हैं कि हम भारत के संविधान का क्या करेंगे, पालन करेंगे। लेकिन इसलिए बताया जा रहा है कि जैसे 119 टर्मी में हुई हैं, ऐसे ही लोगों का ध्यान उस तरफ भी जाए ताकि समझें कि संविधान में कहां कहां जो है वो झोल पाया जाता है। इंशाअल्लाह दोनों बातें करेंगे और हम वैसे संविधान का हम एहतराम करते हैं। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।